His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivritacharya Astotra Satshi Shriman His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nithai Gaura Premanandi. All glories to Assembled Devotees. Hare Krishna. All glories to Assembled Devotees. Hare Krishna. All glories to Assembled Devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Oh, Hari Bol.
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद और 5वां अध्याय में से पहला श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नारद उवाच देवदेव नमस्ते तो देवदेव नमस्ते तो भूतभावन पूर्वज भूतभावनपूर्वज तद्विजानी यज्ञानम् तद्विजानी यज्ञानम् आत्मतत्त्वदर्शनम्। आत्मतत्त्वदर्शनम्। नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावनपूर्वज तद्विज्ञाहि यज्ञानम् तद्विज्ञानि यज्ञानम् आत्मतत्त्वदर्शनम्। आत्मतत्त्वदर्शनम्। नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावनपूर्वज तद्विज्ञाहि यज्ञानम् तद्विज्ञानि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आत्मतत्त्वदर्शनम्। Translation. Sri Narad Muni asked Brahma Ji, O chief amongst the demigods, O firstborn living entity, I beg to offer my respectful obeisance unto you. Please tell me the transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul, covered by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The perfection of the Parampara system or the path of disciplic succession is further confirmed. In the previous chapter, it has been established that Brahmaji, the first-born living entity, received knowledge directly from the Supreme Lord, and the same knowledge was imparted to Narada, the next disciple. Narada asked to receive the knowledge, and Brahmaji imparted it upon being asked. Therefore, asking for the transcendental knowledge from the right person and receiving it properly is the regulation of the disciplic succession. This process is recommended in the Bhagavad Gita 4.2. The inquisitive student must approach a qualified spiritual master to receive transcendental knowledge by surrender, submissive inquiries, and service. Knowledge received by submissive inquiries and service is more effective than knowledge received in exchange for money. A spiritual master in the line of disciplic succession from Brahma and Narada has no demand for dollars and cents. A
qualified student as to satisfy him by sincere service to obtain knowledge of the relation and the nature of the individual soul and the super soul. Om Ajnana-Timirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yudapadamadanam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sarvaitam Sadhutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bala Sahagana Lalita Shri Vishakantikansha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Achyadyaresharine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kam karoti vācānam Pandunandayati Yatripatamaham Madhye Shri Gurum Deenatarinam Shri Chaitanya Ishwaram Paramananda. Hare Krishna. Narada Uvacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvakaha Tad Vijnati Yajnanam Atma Tattva Nidarshanam. Shri Narada Muni asked Brahmaji, O chief amongst the demigods, the firstborn living entities, I beg to offer my respectful obeisance to you. Please tell me that transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul. Hare Krishna. मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की तरफ से सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में दिलपूर्वक स्वागत करता हूँ और श्रील प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो अभी ये महीना गीता जयंती का महामहोत्सव महीना है
और बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि ये महीने में भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता के ज्ञान अर्जुन को दिए थे। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने उसको अभी जब पाश्चात्य देश में गए तो प्रभुपाद को ये बता नहीं पाए कि गीता जयंती है, उनको पता नहीं गीता जयंती। ये भगवान की असीम कृपा है कि गीता जयंती और ये जो क्रिसमस सीजन एक ही साथ आ जाता है। तो एक शुद्ध भक्त बहुत इंटेलिजेंट रहता है, बहुत बुद्धिमान, वेरी गुड। क्रिसमस में मतलब एक दूसरे को तोहफा देना पड़ता है, त्योहार हो क्रिसमस। वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिसमस मतलब दिसंबर इज अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। तो बहुत अच्छा, गीता जयंती तो बोले तो इनको समझ भी नहीं आएगा। चलो क्रिसमस में दिसंबर बुक मैराथन ये महीने में सब लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं। आप लोग ऐसे करो, गो एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, द बेस्ट गिफ्ट। सब लोग अच्छा तोहफा है, इफ यू लव दैट पर्सन उसको सबसे अच्छा तोहफा देना चाहिए। तो इसलिए वहां से शुरू हुआ था ये। आज वो इतना हो कि सब लोग पूरे वर्ल्ड में दिसंबर महीना मतलब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में बुक मैराथन होता है, बुक मैराथन। ऑफ कोर्स बाद में पता चला कि मेन उद्देश्य का श्रील प्रभुपाद था कि ये गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। तो ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का ये जो श्लोक है ये इसके साथ ही थोड़ा बहुत मिलता है, ज्ञान। अभी मैं जैसे हमारी जो कथा आगे बढ़ता है तो अब तक तो मेरा कॉन्वर्सेशन तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का ही था। ये तुरंत नारद और ब्रह्मा जी कहां से आ गए। इसलिए प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में एक बताते, बहुत अच्छा एक वर्ड बताते हैं, do not go behind the chronological order how श्रीमद् भागवतम is presented। मतलब ये भागवतम में बीच में वार्तालाप एक दूसरे का चेंज होता रहता है। अभी सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज का वार्तालाप से तुरंत ब्रह्मा और नारद जी का वार्तालाप हो जाता है। थोड़े समय के बाद जैसे ही कथा आगे बढ़ता है, कभी कभी बीच में मैत्री और विदुर का निकलता है, कभी कभी बीच में उद्धव और विदुर का निकलता है, कभी कभी बहुत सारे। तो इसलिए प्रॉब्लम होते कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बोल क्या रहे किसकी का, क्योंकि हम इस प्रकार की कहानी के लिए एकदम हमारा माइंड सेट हो चुका है। अगर आप कोई पिक्चर में जाते तो अगर उसमें वो कहते क्लाइमैक्स के अंदर क्लाइमैक्स के अंदर एक सस्पेंस है, पर यार थोड़ा दिमाग में बैठता नहीं है। तो बिकॉज वी आर यूज्ड टू एक सीधा साधा बता दो, इसलिए प्रॉब्लम बताते समटाइम्स इट हैपेंस, बट एसेंस उसका सारांश है वो अंडरस्टैंड कृष्णा। तो अभी यहाँ पे आज हमने ये अध्याय चालू किया है, 5वां अध्याय में। एक्चुअली परीक्षित महाराज जैसे सुखदेव गोस्वामी को बताते जाते हैं कि आप मेरे को बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट ट्रुथ। वो उसी के पीछे पड़े हैं, हाईएस्ट ट्रुथ क्या है, कि अभी बताइए, अभी शुरू कीजिए। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक जो था वो सिर्फ प्रेजेंटेशन था, भागवतम यहाँ से शुरू हो रहा है। बिकॉज जस्ट ए इंट्रोडक्शन बता दें कि द फील्ड इज सेट, पूरा स्टेज सेट हो चुका है। ओके ऐसा ऐसा स्टेज ऐसा, बट कहानी अभी से चालू हो रहा है। तो अगर आप, मैं तो वो आज आगे ले लिया है, पर अगर आप ये 4था अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्न के बाद सुखदेव गोस्वामी एकदम बताते हैं वेरी ग्रेवली, बहुत सीरियसली गुरु शिष्य परंपरा को प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना ही अगर आप सुनेंगे तो भगवान को कितने हे भगवान, द लोटस फीट वन, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, द समम मोनम ऑफ ऑल द सैक्रिफाइस, द फादर ऑफ ऑल द यूनिवर्स एंड हस्बैंड ऑफ ऑल द गुड फॉर्चून। इतना स्तुति करते हैं भगवान की, इतना स्तुति करते। क्यों?
क्योंकि भगवान अभी शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है। आप मेरे मुख से ऐसे शब्दों का ही उच्चारण करवाए जो परीक्षित और जो सभा इकट्ठा हुआ है उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हो जाए। मेरे मुख से सिर्फ यही शब्द उच्चारण हो जाए ताकि उनके आत्मसम्मान हो जाए, उनके आत्म तृप्ति हो जाए। मुझे कोई इसमें कीर्ति या मुझे ख्याति नहीं चाहिए। यहां मेरे मार्केट बढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं। हाउ गुड स्पीकर आई एम, इसलिए इतना स्तुति कर करके स्तुति करके भगवान मेरे शब्द, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानमस्तत्वदर्शिनः। अगर वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कोई मार्केट में जाके पैसा लेके खरीद नहीं सकते। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, उसका क्या होना चाहिए, एक करेक्ट गुरु और करेक्ट शिष्य का क्या योग्यता होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति। तद्विधि प्रणिपातेन, he should be inquisitive। उसको सचमुच he should be hankering। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में मुझे समझना है। he should be serious about Krishna consciousness। वो सचमुच एकदम तीव्र कथा, उसको सीरियस इंपॉर्टेंट लेना चाहिए। वो सचमुच ये भक्ति के बारे में समझना है, वो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। और किससे पूछना चाहिए वो महत्व है। एयरफेयर कोई अभी कोई भी हम एयरफेयर को नहीं, इट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। हम बाकी सब्जेक्ट को कुछ लेने के लिए हमको सीरियस है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, ये जो जिससे ध्यान दे रहे हो बराबर है तो है, कोई अंधविश्वास तो व्यक्ति नहीं है। उसने कहां से क्वालिफिकेशन लिया, आपने किस बता देगी अथॉरिटी, प्रमाण, आपका प्रमाण क्या है, आप ये सत्य बोल रहे हो, किस प्रमाण से बोल रहे हो। हम कितना पूछते हैं। अगर भौतिक ज्ञान के लिए हम इतना इंक्वायरी करते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्यों इतना पूछते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान चाहे किसका ना हो, पर सपोज हमारे अगर ब्रेन में कुछ ट्यूमर हो, इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। हम पहले कोई एयरफेयर डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर कोई बोला अरे मैं भी जानता हूं ना, अरे जानने की बात नहीं भाई, मेरा दिमाग है, इसमें ट्यूमर है, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स गेम। कोई न्यूरोलॉजिस्ट या कोई और है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन इतना साल किया है, उससे पूछना चाहिए। अगर उसे कोई भी अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे पूछा तो कोई भी आते, वो न्यूरोलॉजिस्ट को ही पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ रहता है, ब्रेन स्टेम कहाँ रहता है, क्योंकि उतना उसने प्रयास किया है। उसने उतने बता कि दिन रात मेहनत करके एमबीबीएस करके, उसके बाद एमडी करके, उसके बाद न्यूरो जनरल सर्जरी करके, उसके बाद पोस्ट न्यूरो सर्जरी करके, तभी उसको तो अगर एक भौतिक ज्ञान के लिए हम किसी से भी नहीं बोलते तो हाउ सीरियस आध्यात्मिक ज्ञान है। पर हम वो आध्यात्मिक ज्ञान, अरे कोई भी हो, बाबा जी आ गए ना, अरे क्या सत्संग था, बहुत अच्छा सब किया, वो भी तो अच्छा बनवा फिर कपड़ के पहनते हैं और उसका उनका गुरु है। नहीं, कोई भी हो, भगवान के बारे में बता रहे ना। नो, अगर हम अध्यात्म के लिए इतना सोचते हैं तो even Prabhupada says that one should be in तद्विधि प्रणिपातेन, he should be serious। अगर वो शिष्य को ही चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत भक्ति बस हो गया, 50 पैसा भक्ति बस हो गया, थोड़ा मंदिर में आके थोड़ा रिचुअल के जैसे मंदिर में जाना, घंटी बजाना, बस इतना बस हो गया। इट शुड बी अ स्पाइसेस ऑन योर लाइफ। बता देना थोड़ा नमक छेल तो जिंदगी आगे आराम से बढ़ता है, थोड़ा रहना चाहिए, हमारी संस्कृति है। नो, उसका मतलब इज नॉट सीरियस। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको सबको पता है, इंग्लिश में एक शब्द है रिचुअल। रिचुअल मतलब
एक रिचुअल, व्हाट से परंपरा, विधि, विधि के जैसे, विधि इज करेक्ट, रिचुअल एक विधि है, ये हमारी पूर्वज से आया हुआ विधि है। मंदिर में जाना एक विधि है, उपवास रखना एक विधि है, संकष्टी का उपवास रखना एक विधि है, और हनुमान जी को शनिवार में जाके उनको क्या मंदिर में जाना एक विधि है, और मंगलवार को सिद्धि विनायक में जाने की एक विधि है। प्रॉपर बोलते हैं कि रिचुअल, RITUAL बोलते हैं, रिचुअल स्पेलिंग RITUAL, रिचुअल। रिचुअल मतलब ये विधि के जैसे, ये विधि ज्यादा समय हम लेके नहीं जा पाएंगे, या अगर हमारे आने वाला परंपरा, हमारे जो बच्चे, पापा ये आप क्यों कर रहे, पता नहीं बेटा प्रश्न मत पूछो, ये हमारी विधि है। तो आजकल के जो नौजवान, एक बहुत अच्छे कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, अरे क्या पापा को पता नहीं हो बोले। सो आजकल के नौजवान जो वेस्टर्न कल्चर देखते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स, पिताजी को पता नहीं वो क्यों कर रहे, उनके पिताजी को भी पता नहीं क्यों कर रहे, सिर्फ द ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड, एक अंधे दूसरे को अंधा कर रहा है। इसलिए ये वैदिक धर्म एक अंधविश्वास है, एक स्टिग्मा डाल देते, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप लोगों को भी पता नहीं आप लोग क्यों कर रहे, क्योंकि हम अध्यात्म को एक विधि के हिसाब से कर रहे हैं, रिचुअल। पर उसी में अगर आप SPIRIT वो रिचुअल के सामने डाल देंगे तो क्या होता है, रिचुअल के सामने ये शब्द डालेंगे, स्पिरिट डालेंगे तो क्या हो जाता है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या है, स्पिरिट, उसमें आप उतना प्रज्ञा डालते हो, उतना प्रयास करते हो, उसका मतलब जानते हो, कुछ प्राप्त करने के लिए आप उसमें संयम करते हो, सो देन इट डजंट बिकम रिचुअल। आपको पता है आप क्यों आए हो, आप इस मंदिर में सिर्फ सब लोग आ रहे से, नो आई एम वेरी सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये गुरु शिष्य परंपरा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतना प्रार्थना करके आज के चैप्टर में बताते, परीक्षित मैं तुम्हें वही ज्ञान देता हूं जो ब्रह्मा ने नारद को दिया है, ये मेरा हुआ काल्पनिक ज्ञान नहीं है, मेरा वो काल्पनिक ज्ञान नहीं है। एक दिन में ऐसे बैठा था तो एक सडन एक भगवान के ऊपर से एक थंडरबोल्ट शॉक आ गया और उस दिन से मैं बाबा जी बन गया। इट इज ऑल मेंटल स्पेकुलेशन, वो देखिए सिर्फ काल्पनिक ज्ञान है। इसलिए जो व्यक्ति को पता है ही इज वेरी सीरियस, इसलिए प्रॉपर बता दी। एक बार सुभाष महाराज बोल रहे थे, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज, पहले मैं ये बता देता हूँ, एक्चुअली कभी कभी जैसे अभी जो सेकंड कैंटो भागवतम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन के बारे में ही है, सब भूमंडल के बारे में, भगवान के फर्स्ट क्रिएटर क्या है, भगवान के दूसरा क्रिएटर क्या है, महाविष्णु क्षीरोदक्षा एक सागर में लेटते और उनमें जब वो बता देंगे श्वास लेते तो हर कण कण में से वो एक एक बता देंगे ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मांड के अंदर वापस भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में वापस गर्भोदास सागर में रहते और उनकी इसमें से एक कमल में उनके जो नाभि से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा इज द सेकंड क्रिएटर, सेकंड क्रिएटर से इस दुनिया में 14 लोक आता है, 14 लोक में से बीच का लोक धरती पर्वत है, धरती में वो ये क्या चल रहा है प्रभु, आप कुछ भगवान की रासलीला के बारे में बताओ। आप बोलते आप कृष्ण को लिखने वाले हो, आप कृष्ण को मानते, भगवान की वृंदावन लीला कोई समाप्त हुई, आप ये सब भगवान की क्रिएशन के बारे में क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? इतना ड्राई, इतना सो बोरिंग, इतना बोरिंग है जैसे आजकल का मॉडल इज सो बोरिंग। जैसे यहाँ पे सभी लोग आए, हम लोग को पता है जब स्कूल में थे क्या सब लोग को सभी सब्जेक्ट अच्छा लगता था? कोई एक ही सब्जेक्ट, अगर हिंदी सब्जेक्ट अच्छा लगता था, मैथ्स बोरिंग,
अगर मैथ्स बहुत अच्छा रहता था, सब्जेक्ट मराठी तो मरवाती है, दोस्त और नॉट सो मरवाती है। और जिसी को कोई वर्नाकुलर मीडियम है, इंग्लिश, क्या जरूरत है इंग्लिश क्रिएट करना? और सबको पता है सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, और तभी हमें कोई मार्क मिलेगा। अगर हम बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये क्या है, ये कोई सब्जेक्ट है? बोले इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड प्लीज गेट आउट, योर द गेट्स आर ओपन, यू आर नॉट सीरियस। तो उसी तरह सुखदेव गोस्वामी जी को सिर्फ ये 7 दिन खींचने के लिए उन्होंने यहां से शुरू नहीं किया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर वो मैं एक बार शुरुआत करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन के वो सुखदेव गोस्वामी, सुखा मतलब पैरेट, श्रीमती राधा रानी की स्वयं पैरेट है, तो उनको क्या जरूरत है ये क्रिएशन के बारे में बताने के लिए? व्हाट वाज द नीड? इमीडिएटली 10वां कैंटो में लैंड होना चाहिए था ना। 10th कैंटो बोलते जाओ, राधा दामोदर की लीला, भगवान की वृंदावन लीला, कालिया मर्दन लीला, कालिया बहुत भगवान की, जैसे इवन फॉर एग्जाम्पल श्रीनिवास आचार्य प्रभु में श्री रामायण के बारे में बताते जा रहे हैं। मैं भी इसलिए थोड़ा एपेटाइट बढ़ाने के लिए आता हूँ, पर रामायण के प्रति आसक्ति बढ़ने के लिए पहले ये जानना पड़ता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। अगर हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गारंटीड फॉर श्योर 1-2 दिन रुचि आएगा, तो कंटिन्यूस रखने के लिए असंभव है, असंभव। भगवान के प्रति आकर्षण, वृंदावन लीला अट्रैक्शन होने के लिए पहले ये जानना चाहिए हु इज कृष्णा, भगवान है कौन। इसलिए प्रभुपाद बताते फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट इज गॉड, कितने महान है। अगर हमें वो ज्ञान नहीं है तो ये सेंटिमेंटल अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सुपरफिशियल है, थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या बोले वृंदावन की लीला, नो। इसलिए फर्स्ट ये ज्ञान समझो व्हाट इज द क्रिएशन, क्योंकि ये मन का स्वाभाविक गुण है, मन का स्वाभाविक गुण है। थोड़ा दिन करते जाएंगे, उसके बाद ये उसमें बड़ी बात क्या है? हाँ कृष्ण है, भगवान इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है, बैठ जा, ठीक है सब लोग कर रहे, बट वो इंटेलिजेंस की वजह से नो, उसको याद पुनः 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 याद करना नहीं। इट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, इट इज अ सीरियस सब्जेक्ट। नहीं तो ये नाम के ऊपर रुचि क्यों नहीं आ रहा है हमें? Why we are not developing this? अगर कृष्ण के आकर्षण उतना सुलभ है, अगर वृंदावन लीला उतना सुलभ है, अगर भगवान की रास लीला उतना सुलभ है, then why are we not getting attraction for chanting the holy name? क्योंकि we are not understood who is Krishna. अब तक हमें वो ज्ञान नहीं है भगवान कितने महान है, how great is Krishna. हम अनु है, बोलने के लिए हम बोले हम अनु है, भगवान विभु है, पर कितने अनु है कितने विभु है वो हमें बताने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी यहां से शुरू करते हैं, एक ज्ञान शुरू करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जो व्यक्ति सीरियस है कृष्ण भक्ति में, उसके लिए भगवान की रास लीला और भगवान की भौतिक क्रिएशन इज वन एंड द सेम। अगर ये जो आपको गन्ने का जूस, गन्ना पता है, गन्ना आप किधर से भी उसको छपाओ मिठास ही आने वाला है ना। ऐसा नहीं कि आगे के भाग ही बहुत मिठास होता है, पीछे के भाग एकदम तुच्छ रहता है। अगर वो तुच्छ दिखाई दे रहा है, उस आस्वादन आ रहा है, गन्ने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे में। जो व्यक्ति जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस, या फिर किसी को जॉन्डिस हुआ था, अरे प्रभु जी को बताया, तभी उसका रोग क्या है, पर उसका ये औषध क्या है, गन्ना जूस। जब गन्ना जूस पीते तो तभी आपको टेस्ट आया था। जो व्यक्ति जॉन्डिस है उसके लिए औषध है गन्ने का जूस पियो, पर वो गन्ने का जूस इतना कड़वा रहता है, बोलता है ये क्या दे रहे हो, ये गन्ना जूस नहीं है, आयुर्वेदिक है।
अरे तुम्हारा जबान में ये रुचि नहीं है बेटा, रुचि नहीं है, पर ये पीते 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 जाओगे तो रोग निकल जाएगा। उसी तरह गन्ना किधर भी छपोगे, फर्स्ट क्रिएशन या 10th कैंटो या दिस कैंटो या दैट कैंटो, जो व्यक्ति के पास रुचि है, सुखदेव गोस्वामी, ही विल relish like anything। प्रॉब्लम है हम जैसे लोग जो रुचि नहीं है, मुझ जैसे व्यक्ति को उतना रुचि नहीं है, अरे कॉन्स्टेंटली ये पीते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम वो कॉन्स्टेंटली पीते तभी वी गेट अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। वो भगवान के प्रति आकर्षण करने के लिए हमें ये दवाई लेना पड़ता है, क्योंकि इनको पता था अगर मैं यहां से, अगर परीक्षित महाराज का इमरजेंसी है पता है, पर ये जो भागवतम है परीक्षित के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये भागवतम हमारे लिए है। परीक्षित ऑलरेडी भक्त थे, भगवान ने उनको वो स्थिति में डाला था, किसके लिए? और हमारे लिए। अर्जुन भगवत गीता जानते थे, उनको क्यों भ्रमित में डालते? सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं, हम वो लेवल में नहीं है। इसलिए भगवान कभी कभी अपने पार्षदों को वो स्थिति में डालते हैं और उनके द्वारा सिखाते हैं। प्रभुपाद एक अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कभी कभी नई बहू जब घर पे आती है तो सासू माँ को कभी सिखाना पड़ता है उसको। अभी नई बहू को अगर आप वो चिल्लाएंगे तो 2 दिन में चले जाएंगे, और आजकल के टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई किसी का डांट सुनता नहीं है, भगवान मैं किसके भी नौकरानी नहीं हूँ। तो पहले की सासू माँ बहुत इंटेलिजेंट थी, तो क्या करते थे, कुछ गलती हुआ उसको तो चिल्ला नहीं सकते ना, तो बेटी को चिल्लाते कि इतना अक्ल नहीं है, इतने साल पर मैं देखो सिखा रही थी, देखो इतना भी अक्ल नहीं है, आज भी तो यही गलती कर रही है, ऐसा करना चाहिए, रोटी ऐसा पहनना चाहिए, आज भी दिन। हालांकि गलती की है बहू ने, पर डांट कर दी है बेटी, तो बेटी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, मैं तो बराबर नहीं, कुछ नहीं जानती है तू। उसी तरह क्योंकि भगवान को पता है कि अगर हम जैसे बद्ध जीव को 2 दिन छमाट मार दिए तो बस हो गया, मुझे नहीं चाहिए भक्ति करना। इसलिए कभी कभी अपने पार्षद को बताते हैं, कुटस्थो अकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुस्तम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। क्या मैं सोचा अर्जुन, तू क्या था? मैं सोचा तू बड़ा पंडित है, यू आर अ फूल नंबर 1। अगर सोच लीजिए हम वो स्थिति में रहेंगे, अर्जुन जैसे पागल, और अगर कोई हमें बोला तो मूर्ख व्यक्ति है, यू आर अ 0। अगर सोचिए इज्जत इधर ही सब लोग के सामने ने बोला तू उल्लू का पट्टा है, गेट लॉस्ट, तो तभी आप तो बोला कैसे बोले? पर वही कृष्णा, ही न्यू दैट, अर्जुन को पता था ही वाज द करेक्ट कैंडिडेट। वो क्या बोला? इट्स ओके कृष्णा, मैं सबसे बड़ा उल्लू, शिष्यस्तहं साधिमात्म प्रपन्नम, मुझे आप बताओ कैसा मुझे ये अज्ञान को हटाना पड़ता है। क्योंकि वही कैंडिडेट को बोल सकते हैं, भगवान कोई हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के लिए अपने पार्षद के रूप से बताते हैं। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान क्रिएशन के बारे में परीक्षित को कोई जरूरत नहीं था, पर हम जैसे लोगों को पता करना ही था। अगर वो तुरंत गुरु ये रासलीला बोलते थे तो आज बोलते थे, हम लोग भी ऐसे ही कर लेते थे। अरे उसमें क्या बड़ी बात है, भगवान को रासलीला इसलिए प्रभुपाद बोले, इसलिए हम ये जो शुरुआत में भजन गाते ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हम तुरंत भगवान का गोपी जन वल्लभ का फास्ट टाइम सुनना चाहते, पर गिरिवरधारी के बारे में भी तो सुनो। भगवान अनंत शेष के रूप में ये एंटायर ब्रह्मांड को उठा के रखे, उसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना है, पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। भगवान कोई लीला करते बस अंडरस्टैंड कृष्णा इज हाउ ग्रेट इज द लॉर्ड। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, वी शुड रियलाइज। यही ब्रह्मा
यही ब्रह्मा जी आज जो बोल रहे नारद को, वही ब्रह्मा जब 10वें स्कंद में भागवत में जब वो ब्रह्मा कृष्ण की जो छोटी मोटी लीला देखते, बोले ये भगवान, ये इसको भगवान मानते हैं। मधुमंगल के साथ वो चास पी रहे हैं, वो सीधा मगर टिफिन खा रहे हैं, और गोपियों का ये देखिए 4 मुंडी वाले ब्रह्मा वो भ्रमित हो जाते हैं इतना सुनने के बाद। 4 मुंडी में सुनने के बाद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वदामि गोविंदम, इतना सुनने के बाद भी ये भगवान है? आई डाउट। देखिए वो उसके बाद जब भगवान रियल ये बताते हैं, अल्टीमेटली वो जब वो दिखाते कि एंटायर ब्रह्मांड, तो तभी उनको पता चलता है सच तुच्छ व्यक्ति। मेरे 4 मुंडी होने के बाद भी मैं समझा नहीं। मैं सोचा, क्योंकि मैंने अब तक भगवान को विष्णु चतुर्भुज रूप में देखा है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, सब पुरुष शुक्त से उनका अध्ययन होता है, वो भगवान रहते हैं। ये छोटा मोटा ये गोविंद, ये इसको कैसे लोग बोलते हैं भगवान? लेट मी चेक इट। अच्छा बेटा, यू वांट टू चेक मी? मेरा टेस्टिंग लेना चाहते हो? चलो देखते। सिंपल छोटा सा फास्ट था, कोई बड़ी उन्होंने कुछ करामत नहीं किया। यहाँ के ग्वाले को उठा के अपने गुफे में रखे और तुरंत आके देखे तो वापस है। भगवान ने कुछ बड़ा ये नहीं किया, बड़ा यू आर जस्ट ब्रह्मा जैसे, यू आर नथिंग। एक छोटा सा फास्ट में आई कैन मेक यू 0। तो भगवान तुरंत वही ब्रह्मा, अरे ऐसे कैसे मैं उधर उनको छुपा के आया, इधर कैसे वापस आके देख रहा है, वापस ये कर रहा है, तुरंत ही नॉट अंडरस्टैंड। 1 साल तक भगवान ने अपने वही सभी रूप लिए थे, ग्वाला और जितने बछड़े और कितने उनके सभी रंग, he could not understand। और उसके बाद 1 साल के बाद जब ब्रह्मा दिखते हैं, सभी चतुर्भुज वही हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः, सभी नारायण रूप में, सभी ग्वाल नारायण के रूप में। तो तभी वो सोचा मैं कौन हूं? ये भगवान का ब्रह्मांड क्या है, भगवान की लीला क्या है? मैं भगवान को जानना चाहता था। Then he understood this is गोविंदा। और लास्ट में 10th कैंटो भागवत में लिखते हैं, ये आपको हमें समझना चाहिए, 4 मुंडी वाले ब्रह्मा हम जैसे 1 मुंडी वाले ब्रह्मा को बोलते हैं। प्लीज ट्राई टू हियर दिस इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। टिल द सन एंड द मून, जब तक बोलते ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा, आज मैं डिक्लेयर करता हूं I will not be able to understand Krishna. Let the whole world say, कहने दो सब लोगों को कि मैं कृष्ण को जान लेता हूं। आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, कृष्णा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। और जब ये डिक्लेयर होता है तभी भगवान रिवील करते हैं। देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम एक सब्जेक्ट कभी कोई बोर हो जाता है, पर यू शुड अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंटली। एक बार प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज, तमाल कृष्ण महाराज को हमारे प्रमुख लीडर थे तमाल कृष्ण महाराज। अभी वो है नहीं इस धरती पे, भगवान के नाम में वापस चले, पर वो एक लीला बता रहे थे, वो एक लीडर के समान थे। तो एक दिन प्रभुपाद से बोल रहा था, प्रभुपाद हमें ऐसा करना चाहिए, लोग ये सुनते नहीं है, मैं इतना बोलने के बाद भी करते नहीं। भाई इधर आ जाओ, बैठो इधर, क्या बैठो। तो पता है तुम कौन हो? हाँ मैं तमाल कृष्ण हूँ, आपका प्रमुख शिष्य। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें रियल तुम्हारा पोजीशन बताता हूँ। तुम्हें पता है भगवान का एक क्रिएशन मतलब एक 3/4 मतलब आध्यात्मिक है और 1/4 मेटीरियल रहता है। 3/4 भगवान के पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक है और थोड़ा भाग भौतिक है। वो भौतिक क्या रहता है, एक महातत्व जैसे रहता है। महातत्व एक बताते कि क्लाउड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको व्हाट यू से हिंदी में, बादल।
एक बादल के जैसे। बादल कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा इतना बादल के जैसे, एक बादल के जैसे महातत्व। वो महातत्व के अंदर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु आके लेटते हैं। महाविष्णु क्षीरोदक्षाय सागर में लेटते हैं और उनके जब वो श्वास लेते हैं तो तभी उनके हर कण 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 में से ब्रह्मांड निकल रहा है। जब तक वो श्वास ले रहे हैं ब्रह्मांड निकल रहा है, जब वो श्वास अंदर लिए सब ब्रह्मांड के अंदर गए, हम सब अंदर, अब तक बाहर है। थैंकफुल, कीप लेट महाविष्णु कीप ब्रीथिंग। अगर वो अंदर ले लिया, आप लोग सब लोग गए। ये मानो या ना मानो, शास्त्र बता रहा है, दिस इज फैक्ट। तो प्रभुपाद बोले थे महाविष्णु एक हर कण कण में ब्रह्मांड निकल रहा है, हर कण कण में, ये काल्पनिक नहीं है, इट्स अ फैक्ट। हर कण कण में ब्रह्मांड निकल रहा है। हर ब्रह्मांड के अंदर वापस भगवान गर्भोदका सागर, एक गर्भोदका सागर आता है, आधा पूरा यूनिवर्स में, एक हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदका सागर। उस गर्भोदका सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु वापस लेटते हैं, अनंत शेष के ऊपर बैठ, उनके ऊपर बैठ के गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है और वो कमल में फर्स्ट पुरुष ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा उस कमल में बैठे थे, उनको पता नहीं कौन रहता है। उसके बाद उनको बोलते तप, और तप होने के बाद वो क्रिएशन करते। इस दुनिया में 14 लोक है, 14 भूवर महर जन सन सत्य तप, 7 ऊपर और 7 नीचे, अतल सतल सुतल महातल तल तल रसतल और पाताल, लास्ट इज पाताल लोक। तो हम भूलोक में बीच में, तो 7 प्लैनेट में आप एक भूमंडल है, अर्थ प्लैनेट। वो इतना प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट में ज्यादा से ज्यादा ओशन है। ओशन में 3 आइलैंड आता है, एशिया, आर्टिक और समथिंग आई डोंट नो ज्योग्राफी, आर्टिक कौन सा है, यूरोप, एशिया, जो भी है, 3 आइलैंड रहता है, कॉन्टिनेंट। उसमें से एक कॉन्टिनेंट है अमेरिका। अमेरिका में बहुत सारा जगह है, उसमें से एक जगह है वेस्ट कोस्ट। वो वेस्ट कोस्ट में एक जगह पे है, उसमें लॉस एंजलिस। वो लॉस एंजलिस में एक जगह है, उसमें एक मंदिर है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट। उस स्ट्रीट में एक ही गली है, उस गली में एक मंदिर है। उस मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं और उसमें से एक भक्त है धमाल कृष्णा, और वो सोचता है कि वो बड़ा राजा है। So consider what is your position. हम सोचते हैं कि हम बड़े व्यक्ति, हम सब कुछ जानते हैं। I am an IITian, I am an IIM, Ahmedabad, Kolkata, this thing, that thing, nothing. ये एंटायर, इसलिए ये याद करवाना पड़ता है। What is your real position? Neither you are inferior, neither you are superior. अगर हम अपने को तू जा रहे मैं तो बस, नो, neither you are inferior, neither you are superior. भगवान ने तुम्हारा क्रिएशन किया है, वही भगवान की असीम कृपा है। ये याद करवाना पड़ता है, हाउ कृष्णा इज विभु, और मैं कितना अनु, मतलब हमें याद करना पड़ता है। नहीं तो हमारा मिथ्या अहंकार, तुझे पता है हम दूसरे कभी कभी झगड़ा, पता है मैं तो इसको खरीद सकता हूँ, देखो मैं खरीद सकता हूँ, पता है मेरे पास दौलत है, मैं पूरा दुनिया को खरीद सकता हूँ। क्या दुनिया, कब वो दुनिया मुट्ठी में जो व्यक्ति ने बुलाया, ऐसा समय आया कि लिटरली नथिंग कुड सेव हिम, कोई किसी को बचा नहीं सकता। बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े आए थे, कर लो दुनिया में हिटलर जैसे, बड़े बड़े औरंगजेब, मुगल साम्राज्य, पूरा दुनिया को मैं मुट्ठी में बना रहा था। नो वन कैन डू इट। भगवान का पता नहीं कि क्रिएशन इज वेरी पावरफुल। जो व्यक्ति तद विधि प्रणिपाते है ना, वो एकदम नम्रता है, तभी भगवान रिवील करते हैं उस व्यक्ति को। That time Krishna is revealed, तभी वो ज्ञान आ जाता है, यस दिस इज रियल नॉलेज। और तभी हम इस भगवान के आध्यात्म में स्टेडफास्ट, इज सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं लास्ट एक बोल के मैं समाप्त करता हूं। हमारी हाल ही में रिसेंटली
मैंने क्लास सुना था, आप लोग भी सुना होंगे। हमारे एक अच्छे सन्यासी थे, सुभाष महाराज, अच्छे अभी भी है वो बता रहे थे, आप लोग सचमुच कृष्ण लोग जानना चाहते हो? सचमुच आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हो? Really want to go back to Godhead? वो एक प्रश्न पूछा था, टेल मी, आपको सचमुच भगवान के धाम में जाना है? हाँ महाराज, सचमुच। आई डोंट थिंक सो, ये सिर्फ लिप सर्विस है, ये सिर्फ लिप सर्विस है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू Godhead, भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। नो, अगर वो रियली सीरियस है भगवान के धाम में जाने के लिए, he will try not even a single second to be wasted other than Krishna consciousness. अगर वो सचमुच सीरियस है, he doesn't want this comfort of this material world. उसको कोई इस कंफर्ट का जरूरत नहीं है। He is very serious about it. उसको 4 नियम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। Because I do not have any attraction for this material world. मुझे कोई आकर्षित नहीं है इस भौतिक दुनिया के लिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे 10,000 जैसे प्रॉपर बताते थे, he is not interested in dollars and cents and left and sex life, nothing. इसलिए प्रॉपर उदाहरण देते हो चैतन्य महाप्रभु के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के शिरोमणि थे। क्यों उन्होंने सन्यास लिया? He wanted to show one should be very serious about Krishna consciousness. इस भौतिक का आकर्षण मुझे नहीं चाहिए। कितने भी सौंदर्य हो, कितना भी दौलत हो, कितना भी anything, I cannot exchange it for Krishna. ये अगर जो व्यक्ति को सीरियस लेगा, वही व्यक्ति बैक टू गॉड जा सकता है। नॉट दैट आराम से कंफर्ट जोन लेके, जैसे अगर भगवद गीता आर्म चेयर फिलोसफी नहीं है, तू भी बैठ जा, मैं भी बैठ जा। ही शुड बी वेरी सीरियस, डेथ कैन कम एट एनी टाइम। ये भौतिक आसक्ति सिर्फ मुझे मेरे पद से हटाने के लिए है, मेरे को पद से हटाने के लिए है। आई डोंट वांट इट कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए। अगर वो सिंसियरिटी हम बताएंगे, इफ यू आर वेरी सिंसियर अबाउट आवर चैंटिंग, क्राइंग आउट फॉर कृष्णा, भगवान के भक्तों के संग करना सीरियस है, that person alone can go back to God. It is not lip service. Yes प्रभु जी, मैं भी भगवान के धाम में, क्या वो बाजू का घर है क्या? तो पड़ोसी का घर है क्या? बैक टू गॉड है। बोलो वृंदावन को, ऐसा बोलना मतलब उसका हम होते थे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। योग्यता भी नहीं है। नो नो, आई वांट टू गो। इफ यू वांट टू गो, आर यू सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस? इसलिए प्रभुपाद बताते, जब अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप हो रहा था, देन अर्जुन सेड स्टॉप एवरीथिंग, भगवान मुझे ये सब जोक्स नहीं चाहिए, मैं आपका दोस्त रहेगा तो हम लोग एक दूसरे का मजाक ही करते रहे। नाउ आई एम अ डिसाइपल, देयर शुड बी अ सीरियस टॉक। एक गुरु का कोई शब्दों को कोई जोक नहीं समझ सकते, इट शुड बी सीरियस। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा इंपॉर्टेंट है। वो ज्ञान को कोई, इसलिए सुखदेव को समझ, इट इज सो इंपॉर्टेंट। मैंने जो सुना है वो उनको देना चाहिए, वो उनको सुनना चाहिए, वो इसलिए बताए फ्रॉम वेयर इट हैज कम। इसलिए भगवान भी बोलते, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये काल्पनिक ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में सीरियस लेना है, वो व्यक्ति इसको अप्रिशिएट कर पाएगा। ये क्रिएशन कोई ऐसे कोई टाइम पास के लिए नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएशन। भगवान का ब्रह्मांड क्या है, ये नेचर कैसा बना, कोई साइंटिफिक ऐसे फिलोसफिकल ऐसे स्पेकुलेशन नहीं है। इट इज वेरी सीरियस। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का नॉलेज, ये जब हम सीरियसली स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तभी जब 10वां स्कंद बाहर बताएगा, देन यू विल फाइंड अ टेस्ट। नहीं तो थोड़ा समय तक अच्छा था, दूसरा कोई बहुत ही आसक्ति आ जाएगा, निकल जाएंगे। क्योंकि भक्ति सुपरफिशियल है, डीप रूटेड नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जब वो दक्षिण भारत गए थे, ठीक है, माया का पावर कितना है। काल कृष्णदास उनके साथ आए थे, तो काल कृष्णदास उनका पर्सनल सर्वेंट थे। पर जब कोई बटाहारी पर एक ग्रुप था, उन लोगों ने थोड़ा आकर्षित कर दिया, थोड़ा आकर्षित किया, अच्छे सौंदर्य
स्त्रियां थी, उनके पास थोड़ा दौलत था, उनके साथ थोड़ा मैजिक था, तो एक काल कृष्णदास महाप्रभु को छोड़ के उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो उनके उदाहरण से बता दे, जब तक जो व्यक्ति इज नॉट डीप रूटेड इन कृष्ण कॉन्शियस, चांसेस है कि वो स्विंग हो जाता चले जाता है। भागवतम का शरणागति, महाप्रभु जाप का शरणागति में, तो ये स्वीड अवे बाय माया। तो उसी तरह भगवान बताना चाहता है, वन इज वेरी सीरियस, यू शुड चैंट वेरी सिंसियरली। भगवान के भक्तों का संग बड़े सीरियसली लेना चाहिए, और जो हम सुनते उसको प्रैक्टिकली डालना पड़ता है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, हर मंगलवार नो, आई शुड प्रैक्टिकली चैंट। इसलिए लास्ट बताते हैं भगवान, हमें अपना सिंसियरिटी बताना पड़ता है। शो योर सिंसियरिटी। अगर हम सचमुच सिंसियर हैं तो हमको भगवान को बताना पड़ता है, कृष्ण आई वांट टू बी सीरियस कृष्ण। तो आज का ये जो शुरुआत है, मैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट किया। अब अगले अध्याय में से नारद और ब्रह्मा जी का जो प्रश्न है, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोलते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा क्या है, हमें सीरियसली सुनना चाहिए। हालांकि हमें कितना भी टफ हो, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये करते 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 रहेंगे तो एक दिन हर चीज को हमको रुचि आ जाएगा। We'll appreciate everything in Krishna consciousness. अब ये नहीं बोलते कि प्रॉपर्ली ये मुझे अच्छा लगता है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। Everything in Krishna consciousness is important. जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, ऊपर बच्चे लोग कभी बोलते हैं, हाँ मम्मी सब्जी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे गुलाब जामुन नहीं अच्छा लगता है। माँ को बताया एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। तो इसको सहन करके अदाव श्रद्धा तथा साधु संघ के साथ उसको हम बताते कि उसको लेते रहेंगे, तो वन डे वो सब्जी भी हमें बहुत ही रुचि आ जाएगा। अभी ज्ञान नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है, बट व्हेन यू आर देयर इन द एसोसिएशन विद डिवोटीज, ऑटोमेटिकली उसको रुचि आ जाता है। हरे कृष्ण। जैसे कि हम अभी भौतिक दुनिया में भी है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय है? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। दामोदर का प्रभु पूछ रहे, हम भौतिक दुनिया में भी है, भौतिक कार्य भी है और आध्यात्मिक कार्य भी है, ये कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए? क्या आज से भौतिक को छोड़ देना चाहिए? क्या आपका स्टडीज को छोड़ देना चाहिए? क्या कल से ऑफिस जाना छोड़ देना चाहिए? वो आप बोले तो आध्यात्मिक रुचि है सब यूजलेस, इज इट लाइक दैट? जो व्यक्ति को पता है इसका इंपॉर्टेंस है, वो सभी जगह में कृष्ण को देख सकता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, आध्यात्मिक के लिए कोई ज्यादा रुचि नहीं रखता है, पर वो महत्वपूर्ण है, और भौतिक ड्यूटीज आध्यात्म की दृष्टि में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी करना पड़ता है, तो कैसे करें? तो उसका उदाहरण देते हैं आचार्य लोग। अगर एक व्यक्ति अंधा है और दूसरा व्यक्ति लंगड़ा है, पर दोनों को पहाड़ या दूसरे बहुत उनकी जो मंजिल पहुंचना है, तो कैसे करेंगे? एक दूसरे का तो सहायता तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं उन लोग, दोनों व्यक्ति, देखो मुझे तो दिखता नहीं है, पर मेरे भुजाओं में बहुत शक्ति है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे दिखता है पर मैं चल नहीं सकता हूं। तो बोले अच्छी बात है, मेरे भुजाओं मेरे कंधे में बैठ जाओ, और मुझे तो दिखता है, तुम बताते जाओ और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं भी पहुंचूंगा और तुम भी पहुंचेंगे। प्रॉपर बोलते सेम थिंग। स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स स्ट्रेंथ, भौतिक नॉलेज मीन्स नो स्ट्रेंथ। पर जब दोनों चीज साथ में आ जाता है तो हम मंजिल जरूर पहुंचेंगे।
कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक को निग्लेक्ट करके आप पहुंचेंगे। यू हैव टू डू योर ड्यूटी। बैलेंस कैसा करना चाहिए? जब बैलेंस कभी आता है व्हेन यू सी हाउ इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा। इसलिए बोलते डू नॉट बी अ मरकट सन्यासी। बोलते मरकट वैराग्य, अरे ये सब बहुत दुनिया में कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं, हम ब्राह्मण हम ब्रह्मास्मि ये सब छोड़ दो। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। जी के उत्तीर्ण कैसा होना चाहिए उसको सन्यासी बोलते हैं। और हर चीज में भगवान को देखते हैं, ही इज अ नैष्कर्म योगी। हर स्थिति में वो भगवान को देखता है, दैट इज अ रियल योगा। इसलिए जो भक्त है, जिसको ज्ञान है, उसको पता है कि उसके आध्यात्मिक और भौतिक चीज को कैसे वो जगल करके लेके जाना चाहिए। He doesn't consider anything as Maya. He sees Krishna in that. उसको पता है how it can be used in the service of Lord. ये उसी तरह अंधे को जाना है, उसके पास शक्ति है, और लंगड़े को उतना शक्ति है, बस दोनों मिलकर दोनों कार्यों को एक साथ मिलाकर हम अपना मंजिल जरूर पहुंचेंगे। बोथ आर इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक और भौतिक। पर जब वो भक्ति के एंगल में आ जाता है, एवरीथिंग बिकम्स आध्यात्मिक, क्योंकि उसको पता है नथिंग इन द क्रिएशन एग्जिस्ट विदाउट गॉड। इस भौतिक दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जहां भगवान का प्रेजेंस नहीं है, तो वो स्पिरिचुअल है। अगर आपके ऑफिस में भी दैट बॉस इज नॉट द बॉस, आई एम आंसरिंग टू कृष्णा। अगर स्टूडेंट को भी अगर कुछ पढ़ना है तो ही नोज दिस बिलोंग्स, नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो वो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, नहीं तो वो माता पिता के लिए प्रसन्न कर रहा है, वो उनके लिए प्रसन्न करना चाहता है। He tries the best. इवन आध्यात्मिक ज्ञान को भी जब आध्यात्मिक मिला, he sees to the best, no compromise। जैसे मैं शुरुआत में बोलता हूं, जैसे आप लोग पहले, आजकल पेंसिल तो नहीं रहता है, पर जब हम छोटे थे प्राइमरी सेक्शन में, तो हम लोग को माता पिता को दे शार्पन किया पेंसिल को, शार्पन, डिड यू शार्पन योर पेंसिल? नहीं, शार्पन नहीं किया, तो लिखेगा कैसे? थोड़े टाइम बाद तो निकल जाएगा। उसी तरह रोज का दिन का हमारा शार्पनिंग रहता है ना, शार्पनिंग। बाकी कार्य अच्छा होने के लिए शुरुआत में हमारा पेंसिल को शार्पन करना पड़ता है। वो कैसे शार्पन होता है? आध्यात्मिक साधना से। जो व्यक्ति का साधना बराबर है, उसका पूरा दिन अच्छे चले जाता है, बिकॉज उसको पता है आई एम जस्ट अ निमित्त मात्र मम सव्यसाची, भगवान मुझे चला रहे हैं। अगर जो व्यक्ति का प्रज्ञा पता देखिए हड़बड़ा जाता है, दैट मीन्स ही इज नॉट शार्पन्ड हिज लाइफ। इसलिए साधना ब्रह्म मुहूर्त में करना पड़ता है, क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली सेट, देन हिज होल लाइफ इज सेट। उसको पता है फर्स्ट इज कृष्णा, प्रायोरिटी अगर भगवान को दिया, सो देन एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली सेट। अगर वो शुरुआत में सेटिंग नहीं हुआ, तो पीछे का क्या सेटिंग हो जाएगा? सो उसी तरह जो व्यक्ति, इसलिए प्रॉपर खुद के उदाहरण देते हैं, हु सेज कृष्ण कॉन्शियस पीपल लेजी पीपल? He also got distributed. I go to the bank, I do my bank balance, because every money is Krishna's money. There is no laziness. Everything, यहाँ पे अगर प्रॉपर एक रूम में ये पंखा चालू रखे, don't you know this is the energy of Krishna? ये बंद कर दो। Who can be more precautious than a devotee? क्योंकि वो सब कुछ जानता है ये भगवान की एनर्जी है। You should not miss the single moment. तो जो व्यक्ति को करेक्ट उसका लाइफ को पता है व्हाट इज भौतिक एंड व्हाट इज आध्यात्मिक, वो आराम से अपना मंजिल पहुंच सकता है। सो ही कैन बैलेंस। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इज वन नोज। उसको नॉलेज पता है, तो उसको पता है कैसे बैलेंस करना है। एवरीथिंग हैज गॉट अ टाइम, एवरीथिंग हैज गॉट। अगर ऑफिस में बैठ के वो हरे कृष्ण महामंत्र जाप रहे, भगवान को उसका कार्य में वो भगवान को देखता है। और जब हरे कृष्ण करना है, वो आज का प्लानिंग 10 बजे को तो मीटिंग है, 9 बजे 9:30 बजे सब हॉच पॉच खिचड़ी बना रहे हो। जिस कार्य को दिए वो कार्य को पूर्ण करना चाहिए। और जो कार्य हमें भौतिक है, वो कार्य में यू कैन नॉट बी लेजी।
कल ये नहीं बोले हरे कृष्ण भक्त वाले सिर्फ लेजी ऐसे नाम हर नाम राम होते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। नो, दे आर वेरी सीरियस। अर्जुन ने जब बाण छोड़ा, he didn't chant हरे कृष्ण कृष्ण he was shooting था 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 था। उनको टाइम का है जाप करने के लिए, बिकॉज उसके जाप को हर बाण में उसको पता है कि कृष्णा इज देयर, माय ड्यूटी आई शुड बी चैंट, बट एट द सेम टाइम व्हेन सब खत्म हो गया, देन ही नोज कृष्णा यू आर द फर्स्ट। दिस इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। ये नहीं कि मंदिर में ऑफिस में मंदिर, नो, डोंट चेंज। वो जगह पे वो कार्य करना ही चाहिए, इसमें लेजीनेस नहीं है, दस वो निकाल चाहिए। वी शुड बी एन एग्जांपल, ये एग्जांपल, दिस इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। जो स्थिति में जो भगवान ने दिया वो स्थिति में करेक्ट कर, जो प्रोफेशन दिए उसको करेक्ट प्रोफेशन कर। वहां पे किसे भगवान को आप वो दृष्टि से कर सकते हैं, यू शुड द बेस्ट। सो ये जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट है, बोलते ना बेसिक, उसका बेसिक में करेक्ट फाउंडेशन है तो बिल्डिंग अच्छा खड़ा हो जाएगा। सो देन देयर इज नो डाउट। थैंक यू। बाकी किसी का प्रश्न? लेकिन पूरी साधना जब करते हैं ना तब विचार आते ही रहते हैं। ये मन का स्वाभाविक है, ये मन का स्वाभाविक गुण है, मन का स्वाभाविक गुण ही ऐसा है। उसको ये करके उसका बच्चे का या बंदर का स्वाभाविक गुण है चंपा ना उड़ दे, पर माता पिता को एक बैठ जा, कम स्टॉप इट। उसका अरे माता आप क्यों जा, नो स्टॉप इट, लेट्स नॉट कंट्रोल, लेट्स नॉट बी मेड डिसिप्लिन। इस स्वाभाविक है, मन का नेचर ही है भागते रहना, ये करना, इसके वापस नो, मन का वही स्वाभाविक है ना, अरे छोटे हमेशा कृष्ण कृष्ण, नो स्टॉप इट। तब बच्चे डर के बाद में बैठते ना, नहीं अभी तो सावधान वेद दंड, अभी दंड मिलने वाला है। मन शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस अ सीरियस मैटर। जब जाप करते यू शुड नो नथिंग इज इंपॉर्टेंट, चैंटिंग इज चैंटिंग। अरे क्या चैंटिंग, ये भी कार्य, एवरीथिंग गेट स्टॉप। दैट्स व्हाई गोस्वामी मतलब कौन? गोस्वामी मतलब जो मन और इंद्रिय को कंट्रोल में रखा। मन के हिसाब से हम भागेंगे तो अगर बच्चे बोले पापा मेरे वो भी चाहिए, मम्मा वो आइसक्रीम भी चाहिए, हम बच्चे के हिसाब से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? सब में सिर के ऊपर चढ़ा के रखा है, इसको नीचे लेके आओ। अगर बच्चे लोग बोलते तो मन को क्यों नहीं कर सकते? ये उनका स्वाभाविक है, मन का नेचर ही है। एक बार उधर जंप करना, एक बार इधर जंप करना, उसका नकल करना, उसका ये करना, उसका ये स्टॉप इट, एवरीथिंग स्टॉप, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। दिस हैज अभ्यास योग युक्तेन, प्रयास करते करते करते। इसलिए सिर्फ प्रभु जी आप नहीं, इवन अर्जुन आशीष, क्या बोल रहे हो? ये हवा को रोकने का बोलो, मैं अभी रोक सकता हूँ, मन को कंट्रोल करना। And immediately Krishna says, अभ्यास योगे युक्तेन अर्जुन, I do understand it's difficult. अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। मन की तरह नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और बाद में समझता है ये इधर मेरा कोई तेल खाना पकने वाला नहीं है, जो होता है। Then the mind becomes the best of all the friends, best of all the friends। वो गोस्वामी है। मनी बोलता है अरे उठो यार, जाप तो करो। ये कितने अब्रह्मा, कितने जन्म जन्मांतर से जन्म इस भौतिक दुनिया में हम मन का ही सुने ना, एक जन्म में थोड़ी सुनेगा, इतना जन्म तो सुना है, आज तेरा में सुनना पड़ेगा। इतना तेरा सुन के आज भी भौतिक दुनिया में सुनना पड़ेगा। आत्मा का ही, अगर अभी गुस्सा निकालना है ना, दूसरे के ऊपर गुस्सा मत निकालो, अपने मन के ऊपर गुस्सा निकालो। भक्ति सिद्धांत पकड़ के मारो उसको, जो गाली दे रहा है मन को ही गाली दे दो, दूसरे के ऊपर गाली मत दो। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन ही है। वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, ये है, वो है, ये है, सब पॉच पॉच, ऑल कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल कॉज। बोलते ना गोविंदम से कॉज ऑफ ऑल कॉज, हमारा कॉज ऑल कॉज है मन ही है। दो तीन गाली, जो गाली देना है एकांत, ये नहीं तो एकांत जाके उसको गाली दे दो। इट इज वर्थ टू टेक गालीज। मन को गाली 100 गाली दे दो, सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है भगवान का सेवा करना, मन का स्वभाव है उधर इधर नाचना। दैट इज नॉट इट। वी वांट टू कंट्रोल द माइंड। जो व्यक्ति को सीरियस है, ही वांट्स टू इट। 10 बार भागेगा, 11वां बार तो बुलाएगा ही ना। कृष्णा सीज योर एफर्ट,
कितना प्रयास कितना कर, मन जा रहा था, हाँ जाने दो यार, अरे जा रहा है जाने दो, फॉर दैट इज नॉट सीरियस, दैट इज नॉट सीरियस। वो क्या हुआ है, रिचुअल, अरे रिचुअल हो गया, एक और दो मानोगे, रिचुअल नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स एवरी नेम, एक नाम के लिए आज भी मैं जीवित हूँ, एवरी नेम, हर नाम इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्पिरिचुअल। वो जब आ जाएगा तो कॉन्स्टेंटली, देन कृष्णा सीज इज सीरियस, ये व्यक्ति को देना ही चाहिए, देन ऑटोमेटिकली करते 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 आ जाएगा। और वरी अभ्यास हो गए, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी, यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत प्रैक्टिकल करना बहुत, बट आप लोग के भक्तों के आशीर्वाद से दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल पहुंचेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।